नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, a very warm welcome. आपका दोस्त, आपका host RJ Varun is here. But आज regular radio show के लिए नहीं, but on my Facebook Live, I am doing this show just for a very special reason. हम जब से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमने शुरू किया है, and actually we started talking around June 15, June 16 से हम उसके डेथ के बारे में, तो मिस्टीरियस डेथ के बारे में बात कर रहे हैं. We've been talking to a lot of people. We've been bringing a lot of people on the show जिनके साथ आप बात कर सकें, आप जान सकें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, and also to know what kind of a person सुशांत was. तो इतने सारे लोगों से हमने बात की है, बट आज हमारे साथ जो जुड़ी हैं उनसे बात करने के बाद we will definitely get to know the real side of Sushant Singh, because Sushant Singh Rajput really connected well with this guest of ours. They had a great kind of relationship for a very long time, even before he became maybe a superstar. And साथ के साथ he also had this side of his personality, जो म्यूजिक, जो पोएट्री के बारे में इंटरेस्टेड था, जो अब तक इतना मीडिया के अंदर नहीं आया, इतना उसके बारे में बात नहीं हो रही. And for a reason, because everybody is right now trying to portray him in a very negative manner, negative way में, कि maybe he was a drug addict, he was a mentally disabled person, and that is something which is absolutely not right. और इसीलिए हमने आज इस स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया, because she knew him upfront and very personal level पे उनको जानते थे, and of course from a very close proximity. So I am really, really honored and really, really humbled to have Smita Parikh with me on my show. Thank you. आप सबको मेरा नमस्कार. Thank you so much for inviting me on your show. And it's an honor, it's a pleasure to have you, because a lot of people really want to know कि सुशांत के साथ इतना जो character assassination हो रहा है इस time पे, is anything in that, even 1% of it is right or wrong. So thank you for that. And of course we have another special guest जो हमारे साथ काफी देर से जुड़ी हुई हैं. And the reason why she is connected is not because she is a big Sushant Singh Rajput fan. She is just like one of us. She is a great warrior for fighting for this cause, and the first person actually who kicked off this billboard मुहिम जो शुरू की थी इन्होंने in Bay Area. So lovely, welcome to the show as well. Thank you Varun for the kind words. No, absolutely. So without wasting any time, and I see a lot of people have started joining, I really want to get into the details as well. But Smita, you are a well-acclaimed poetess, someone who has done TEDx talks, someone who has been in the front line, and really made a mark for yourself. So you connected very well with Sushant Singh Rajput on a personal level. So first of all, tell us a little bit about yourself, a little introduction, and also something that really connected you, the reason why you and Sushant kind of connected so well. Okay, so सुशांत से जब मैं पहली बार मिली थी मेरे फेस्टिवल में, जब वो एज अ स्पीकर आए थे, and he wanted to talk on the education system of the country, and उस वक्त में जो उनके ideas थे to change the education system and how he can bring revolution by small arrangements here and there. So that really impressed me so much, because that time he was just 30 years, or maybe about to turn 30. Wow. I mean, such a young boy in his late 20s, and talking about this kind of revolutionary changes in the entire education system, which nobody would have thought of. Imagine. So मैंने सोचा इन्होंने सोचा कैसे ये, और सोच के भी जिस तरह से वो अपनी बातें प्रेजेंट कर रहे थे, the way he was talking there, with so much of conviction, and he believed in all his ideas which he presented there, and much more. And everybody over there who was present in the audience was stunned and so impressed. Because if you see Bollywood actors,
they endorse certain things, but nobody has ever endorsed something like education, that too for rural India. Because अगर आप देखें तो रूरल इंडिया में तो एजुकेशन ही अवेलेबल नहीं है, यू नो। Yeah. स्कूल्स कॉलेजेस तो छोड़ दीजिए, बेसिक ब्रेड एंड बटर ही नहीं है वहाँ। उस लेवल पे सुशांत ने एजुकेशन को सपोर्ट करने की बात सोची, ना सिर्फ सपोर्ट करने की बात सोची, बल्कि उसने ये सोच लिया कि मैं इंडियन बच्चों को एट दैट अर्ली स्टेज ओनली रिकग्नाइज कर लूंगा उनकी कैपेबिलिटीज, और उनको फिर बाद में वी विल नॉट पुश देम। सपोज somebody is not very good in academics, but that person might be good in drawing or graphics or anything else, right? Or singing or any other art form. So he said that we will recognize it at very early stage, and then we will nourish those children in those direction only. I mean, how amazing is that, that you are thinking like this? You know, a lot of people would have, if they would have thought about something like this, Varun ji, they would have given it to the IB schools, you know, or the schools where they could have meant so much money out of it. But he did not think like this. This is something which, you know, got me, you know, really adore him at the very first meeting itself. Absolutely, and you know that speaks volume of the kind of character this man had, right? Log is time pe agar dekha jaye, you know, and especially I'm going to talk about this Riya Chakrabarti PR team, who's trying to kind of, you know, character assassin not only him but his family, you know, and uske bare mein itna galat likha ja raha hai, bola ja raha hai, or and people, you know, they're trying to reach out to media who could kind of tarnish his image, you know, and shame on them for sure, you know, and I you know, I'll be very honest, you know, ho sakta hai is conversation ke bare mein mera passion bhi bahar aa jaye, you know, because I am really hurt and I'm really angry. ऑब्वियसली I am very ऑब्वियसली angry. किसी को कोई भी राइट नहीं है आपके ऊपर अगर एलिगेशन लगाए गए हैं, तो सबसे पहले आप उसके 74 ईयर ओल्ड फादर की पर्सनल लाइफ को जिस तरह से तहस नहस कर देते हो, और गलत इल्जाम, सबसे पहली बात तो ये है दैट इट्स सच अ रॉन्ग एलिगेशन। देन यू कम बैक टू द सिस्टर्स वेयर यू आर सेइंग ही हैड such a pathetic relationship with the sisters, and which was debunked by each and every one, and me also, because whatever I knew about you know, him and his family, it was so beautiful. It was just like a beautiful middle class family where everybody is so highly educated. All the sisters Absolutely. and brother-in-laws, they all are very well educated, and now they're all doing very well in their own fields. सो Exactly. कहाँ सवाल उठता है कि उन लोगों को पैसे की जरूरत थी सुशांत, कि दे ऑल आर डूइंग सो वेल इन देयर फील्ड. व्हाट रियली बाइंडेड देम इज the bonding of brothers and sister and the family, because they had already lost the mother so many years back. So Yeah. naturally that vacuum was again keeping all of them together, because I'm going through the same thing. I lost my mom 15 16 years back, and then my dad, and I know how four of us are, you know, like still binded because of that vacuum, because we miss both of them all the time. Absolutely. So And I maybe Ria and family, they will not understand this. How, what do they know about family? See, exactly. I Yeah. mean, अगर ऐसा होता तो वो पेरेंट्स ही सबसे पहले मना कर देते कि तुम ये सब मत करो, राइट? तो जहाँ अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, मैं तो डायरेक्टली बोलूंगी और मैं बिल्कुल साफ बोलती हूँ, जहाँ अपब्रिंगिंग ही ऐसी है, जहाँ माँ बाप ने मना ही नहीं किया, बेटी इतना पैसा खर्चा कर रही है बॉयफ्रेंड का, तो मना करो ना। सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी भी कोई चीज होती है वो सिखाओ, और आपका बेटा भी उसकी फीस भी उनका बॉयफ्रेंड दे रहा है, तो भाई 24-25 साल का लड़का है। मैं तो याद है मुझे, मैं 15 साल की उम्र से मैंने घर से पैसे लेने बंद कर दिए लड़की होते हुए भी, तो वो लड़का होके उससे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, आप बहुत बहुत वैलिड पॉइंट आपने बोला, बिकॉज यू नो I've met Shweta, you know, जी Sushant's sister, you जी know, जी on couple of places, couple of, you know, events here in Bay Area, and जी again from my personal experience as well, I can tell you, right, she knew about Sushant's, you know, stardom. You know, ऐसा नहीं है कि, you know, Sushant अभी star बना है, but जी whenever I met, you know, I still remember the first time I met her as Shweta Kirti. She did जी not talk about Sushant. She did not mention, and she doesn't. I think she on a personal level she did not like to talk about it, because you know वो भाई है, भाई ने जो किया वो भाई के एग्जैक्टली level पे है.
and that speaks a lot about their upbringing कि आप उन्होंने सोचिए कि सुशांत खुद ही नहीं फ्लॉन्ट करते थे वो चीज। जब एग्जैक्टली सुशांत खुद ही नहीं करते थे तो फैमिली खुद भी कैसे करेगी वो चीज। वो खुद ही इतने ज्यादा डाउन टू अर्थ थे। आपने देखा उनके, अंकित आचार्य ने कहा कैसे वो उनके बेड पे ही सो जाते थे, कैसे वो लोग खाना साथ में खाते थे। सैमुअल हाउकिप ने मुझे एक कॉन्वर्सेशन में बताया कि कैसे सडनली सब जितने भी दोस्त उनके घर में रहते थे उनको सडनली कुछ कुछ गिफ्ट ला कर देते थे। तो एक भाई वाला रिश्ता बनाया था उन्होंने, जो लोग उनके घर में रहते थे। और कुछ एग्जैक्टली लोगों ने भाई बनकर ही उनके पीठ में छुरा घोंप दिया, जैसे पठानी, दीपेश वगैरह जो लोग हैं, राइट। उन्होंने बहुत बदनाम किया है इस रिश्ते को सीरियसली। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, योर जी। योर फर्स्ट टाइम व्हेन यू काइंड ऑफ मेट हिम। पहले तो आप थोड़ा ये बताएं कि हाउ डिड यू एंड सुशांत मीट एंड हाउ डिड दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप फ्लरिश? Yes, as I mentioned, that he had come as a speaker at my festival, which we host in Mumbai, called Lito Fest Mumbai. And he was very happy to be a part of it because a common friend, Pankaj Dubey, was a very old friend of Priyanka and Sushant both. Like Priyanka and Pankaj were classmates in Delhi University. So imagine they go way back, and then Sushant became star, and still they were like in touch. So Pankaj is, a literary advisor on my festival. So he kept talking about this festival, which is doing so well, and we have adopted a rural village, in fact. So whatever we have, promised, we have gone beyond that and delivered that. So we adopted the village. We done up the school building. We have given training to the kids and the teachers, etc. We have given them a free library. So the idea was not only to host a very premium festival in a metro city, but also to bridge the gap between the education at the rural level and the literature festivals. Because अगर रूरल में एजुकेशन ही नहीं होगी तो हमारा लिटरेचर पढ़ेगा कौन बाद में, Yeah, 100 I साल really बाद। like every time that what you say, that we are bridging the जी gap between literature and literacy. So एग्जैक्टली। सो देर आर that's, लवली, yeah, देर आर मल्टीपल फेस्टिवल्स हैपनिंग, और हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग जाके पढ़ लेते हैं वहां पे, बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। बट रूरल एरिया में तो बच्चे आपका दिल दहल जाएगा सुन के, बच्चे स्कूल इसलिए जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको 2 मील्स देती है वहां पे। Yep. So it broke my heart so much because when I went there and I saw full attendance, almost full attendance, I was like, wow, so impressive. They all come to school, right? And the teachers themselves said, यहाँ पे क्योंकि 2 मील मिलते हैं, breakfast and lunch. Can you believe it? That. So that is their motivation, and that मुझे उसने इतना शेकन अप किया, मैंने बोला नहीं यार, अब एक गांव अडॉप्ट करके पहले उसको करते हैं, एंड देन द आइडिया इज टू पिक अप as much as we can. I want to give it to as many volunteers who will come ahead and start doing this work in rural India. So yeah, that was the mission, and that basically brought me and Sushant together because उनका भी कहीं मोटिव एजुकेशन पे और म्यूनिसिपल स्कूल्स और रूरल्स में काम करना था, which I was already doing. So yeah, वहाँ जब धाराएं मिली, जब विचार मिले और मंजिल मिली, तो हम साथ हो गए हर तरह से। और फिर धीरे धीरे पता चला कि उन्हें पता चला मैं पोएट हूँ, तो वो उनका एक बहुत एक ऐसा दिलचस्पी का एरिया था जहाँ वो हमेशा उसमें उनका क्या था ना, देखो न सिर्फ वो एक एक्सीलेंट इंटेलेक्ट पर्सन थे, ना सिर्फ वो एक्सीलेंट आर्टिस्ट थे, बट आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, पोएट्री, सिनेमा के जितने भी फील्ड्स हैं उनके सारे न्यूएंसेस उनको सीखने का शौक था। तो वही उनको एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनाता है। जैसे शेखर कपूर साहब ने पानी के लिए बताया कि कैसे 3-3 बजे भी आ जाते थे फोन करके कि अगर एक्टर ऐसे देखेगा तो कैसे होगा, अगर वो ऐसे लगेगा तो क्या। इतना डेप्थ में जब जो आदमी जाता है अपने कैरेक्टर की, या फिर केदारनाथ की बात हम करें कि उन्होंने अपने घर में ही वो मंसूर का पूरा सेटअप बनाया हुआ था, वो रहते मंसूर की तरह थे, तो वो मंसूर को एक्ट कर सके, इनएक्ट कर सके ऑन द स्क्रीन। I also feel that there is this one thing कि जैसे बाकी जो एक्टर्स और स्टार्स हैं, वो जो जी भी अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम उस पर लिखते हैं, it doesn't reflect who they are. It seems they are ट्रू, paid for it or whatever. But एब्सोल्युटली, Sushant, he connected with his fans, everyone, एब्सोल्युटली, and he, like you say, poems. He called it the self musings. जी And जैसे मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था, उसमें he said that every 10 second I get this thought and I try to catch it and put it somewhere. So this is राइट, all a part of it. I think वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज जो भी उनके कैरेक्टर को खराब और मलाइन करने की कोशिश कर रहा है,
So the fans, the people are also coming out and saying कि नहीं ऐसा नहीं है. We kind of know him because he was so honest with us. Exactly. क्योंकि वो दिन में 3-3, 4-4 घंटे, आप तो खुद जानते हैं, सोशल मीडिया पे वो खुद हर एक मैसेज का जवाब देते थे पर्सनली. वो हर एक कोशिश करते थे कि जितने भी मैसेजेस उनके इनबॉक्स में ओवरफ्लो हो रहे, वो हर एक का जवाब देते थे. जब लोग उन्हें अप्रोच करते थे अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, अगर वो फाइनेंशियल हो तो सबसे पहले वो उसका सोल्यूशन देते थे और अपनी हेल्प ऑफर कर देते थे. कोई और प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम हो तो भी हमेशा कहते थे कि प्लीज कॉल मी, प्लीज मीट मी, और whatever best he could do, he has done it to many people. I know, and at such a young age, right? I mean, he 34 tak, people are still figuring out. There are, again, without naming some of the bigger stars, right? 50 plus ho chuke hain, and they still have no clue about their life. They're just talking about money. They want to play college students even now. Sorry, what? Exactly. हाँ, बड़े आराम से वो लोग उस तरह के कपड़े पहन के सोचते कि हमारा चेहरा दिख रहा है कॉलेज स्टूडेंट का. हंसी भी नहीं आती अब मुझे उन लोगों पे. I know. और जैसे कि एक वो एग्जांपल बहुत ही ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, that how Akshay Kumar wanted to do Dhoni and how he was so hurt कि भाई, why am I not getting it? And the simple reason given was because of his age. And how could these artists or these so-called stars wanted to kind of take roles that exactly was really doing and was excelling in each and every. वही अभी थोड़ी देर पहले लवली से बात हो रही थी, right? I mean, looking at the time span that Sushant has been in this industry, I think अगर राजेश खन्ना या जितने भी legends हुए हैं, अगर उनसे compare किया जाए, he definitely falls in that bracket because इतने कम time में इतना success, I think even शाहरुख खान जैसे तक को नहीं मिला. And this is बिल्कुल नहीं, उन लोगों को सालों तक प्रूव करना पड़ा, बहुत सारी फ्लॉप फिल्में देनी पड़ी, और उसके बावजूद उन्होंने पेड पीआर किया. अगर आपने देखा हो तो exactly. तो ये किंग खान कोई खुद को ही बुला लेता है. अरे हमने तो, पब्लिक ने तो कभी किंग खान नहीं बोला उनको, खुद ही ने खुद का नाम किंग खान रख के फिर पेड पीआर कर दिया. हम तो ना किंग खान कभी बोले और ना कभी बोलेंगे. सॉरी. Right. You're saying something, Lovely. Yeah, so coming to the fact now that अभी जो सब चल रहा है, so much hate you are getting from a part of social media. This new thing that people want to establish, that you've always been in touch with like Riya and all. You want to say that? Actually, I don't even want to waste my time on clarifying on this because मुझे प्रियंका और सिद्धार्थ इतनी अच्छी तरह से जानते हैं, और एक हमारे कॉमन फ्रेंड है, जो हमारी एक गैंग थी, मैं, सुशांत, प्रियंका, सिद्धार्थ और एक कॉमन फ्रेंड. तो हम लोगों की हमेशा बातचीत होती रहती थी नेचुरली फ्रॉम द वेरी डे जब से प्रियंका को उन्होंने बदनाम कर दिया था और एलिगेशन लगा के घर से निकलवा दिया था. From that day we were naturally talking very frequently and it had really shaken all of us कि ऐसे कैसे कर दिया, ये क्या हो गया, ये I mean कुछ समझ नहीं आ रहा था. और प्रियंका बहुत ब्रोकन थी, और नेचुरली क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात ज़्यादा हुई है सिद्धार्थ और प्रियंका से, तो मैं उनसे क्लोज फील करती थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सुशांत से करती हूँ. तो एक कंसर्न था मुझे, बट उसके बाद नेचुरली हम लोग सभी सुशांत से कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नंबर्स चेंज हो गए उनके, या फिर उन्हें ऐसा मोबाइल दिया गया जिसमें कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं होंगे, तो वो किसी को कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए. और उनका लास्ट मैसेज मुझे ध्यान है, मैंने दिवाली पे उन्हें किया था, हैप्पी दिवाली सुशांत, तो उनका जवाब आया था बहुत तहजीब और तमीज़ से, जैसे उनका हमेशा आता था, आपको और आपके परिवार को भी स्मिता जी, गॉड ब्लेस. और उसके बाद फिर नंबर्स चेंज हो गए, तो मैसेज डिलीवर होना बंद हो गए. तब मैंने रिया को मैसेजेस किए, क्योंकि सभी फ्रेंड्स ये कहने लगे कि अब रिया के थ्रू ही जाना पड़ेगा वहाँ पे, नहीं तो वी कांट रीच आउट टू दिस पर्सन. तो वो मैसेजेस मैं उन्हें भेजती थी, वो पढ़ती तो थी लेकिन जवाब नहीं देती थी. तो दैट मीन्स जब से मैं सुशांत से टच में नहीं थी, तब से मैं रिया से भी टच में नहीं थी. वो मेरे टच में आई है आफ्टर हिज डिमाइज, और दैट टू आफ्टर 3 weeks ऑफ हिज डिमाइज. मुझसे पहले उन्होंने 1-2 और फ्रेंड्स को कॉल किए टू नो द स्टोरी ऑफ दिस साइड, कि फैमिली क्या सोच रही है, दुनिया में क्या सोचा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया तो उसने देखा ही था. शी वॉज ऑलरेडी कॉल्ड नेम्स बाय पीपल बिकॉज पीपल हेटेड हर ऑलरेडी. सो शी कॉल्ड दिस कपल ऑफ फ्रेंड्स एंड वी डिस्कस्ड इट ऑल्सो कि अरे आपको कॉल किया था, क्या हुआ.
फिर मैसेज किया उसने कि एक फ्रेंड को कि लोग मुझे क्या क्या कह रहे हैं, पता नहीं मैं इन एलिगेशन से कैसे बाहर आऊंगी. सो वी डिसाइडेड ऑल ऑफ अस कि एक ऐसा न्यूट्रल मैसेज उनको भेजो ताकि उसे कुछ मतलब नीदर ऑन हर साइड और ऑन एनी साइड, कि जस्ट प्रे एंड डू मेडिटेशन. So that was the one sentence which was sent to her by one of her common friends. So usko samajh mein aa gaya ki ye banda mujhse baat karne mein interested nahi. So then she started approaching me, and then she approached me and started telling her, playing her victim card. But what really shocked me during that conversation, वो हमेशा मतलब वो उस कॉल में कॉन्स्टेंटली बुराई कर रही थी उनकी फैमिली की, ये वो. और मैंने उसको बोला था कि मैंने प्रियंका की साइड सुनी है उस कॉल में, और मुझे पता है प्रियंका बहुत शैटर्ड हुई है, इस तरह का एलिगेशन तुमने लगाया, ये सब हुआ कैसे. बट मोर नेचुरली आई वॉज इंटरेस्टेड टू नो हर साइड, बिकॉज मुझे पता था कि एटलीस्ट अगर सुशांत के साथ जो भी क्रूअल्टी हुई है ये शायद मुझसे शेयर कर ले, ये शायद मुझे बता दे. बट शी वॉज प्लेइंग सच स्मार्ट गेम कि उसने मुझे अपनी साइड कुछ भी नहीं बताई. बट शी वॉज आस्किंग फॉर, स्मिता जी मुझे मेरा लैपटॉप दिलवा दो, मेरी कॉफ़ी मशीन दिलवा दो, मेरा मैंने एक वॉच गिफ्ट की थी सुशांत को, वो मुझे दिलवा दो. तो मैंने उसको लिखा सिंपली कि पुलिस को लिखो, पुलिस तो तुमसे बहुत कनेक्टेड है. उसने मुझे उसके पहले ही कॉल में कहा था कि बॉम्बे पुलिस इज सपोर्टिंग मी सो मच. इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट सीनियर ऑफिसर कॉल्स हर and tells her, according to her, which I don't believe, कि पुलिस को इतनी टाइम है कि वो रिया को कॉल करेंगी. and he supported her and said, रिया you are innocent and we trust you. तो मैंने बोला तो पुलिस तो तुम्हें सपोर्ट करती है तो तुम उनको कॉल कर लो और लिस्ट दे दो जो भी सामान तुम्हें चाहिए. वैसे तुम्हारा सामान उन्होंने फेंक दिया होगा. आई हैड टोल्ड हर ऑन द कॉल, बिकॉज कौन उस लड़की का सामान रखना चाहेगा. तो शी सेड नहीं वो बेच देंगे मेरा सामान, which was so funny. कि कौन खरीदेगा उसका सामान. My God, I mean seriously, people will be so scared of anything she must have touched that every time I just say this, that every time she speaks she reveals her own character. This is what she would have done maybe. All exactly you're so correct, Lovely. कि बेच कौन देता है ऐसे किसी के कपड़े जूते. एंड सबसे बड़ी बात, आपकी सबसे कीमती चीज चली गई. आप कह रहे हो लव ऑफ माय लाइफ था और ये था, और आप मांग रहे हो कॉफी मशीन, लैपटॉप, कपड़े और थोड़े जूते. आप इतने सारे करोड़ों रुपए तो ले गए उसके अकाउंट में से और अभी भी आपकी नजर उस पे. आई मीन कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक सीरियसली, तो डू यू बिलीव, अभी जैसे वो कह रही है कि आई डोंट सी एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया एंड मुझे कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, मतलब इसका क्या गोल हो सकता है? नो, शी इज लाइंग. इनफैक्ट एक वीडियो रिलीज की थी रिपब्लिक ने, जहां उनके घर की विंडो से जब उन्होंने फोटो ली थी तो वो रिपब्लिक देख रही थी. तो वो सब देख रही है और वो अपने वकील को ब्लेम कर रही है कि मेरा वकील मुझे इन चीजों से दूर रख रहा है ताकि मैं ये ना जान सकूं कि ये मर्डर हुआ है. वो वहां भी इनफैक्ट उन्हें भी बदनाम कर रही है एक तरह से कि वकील मुझे इन चीजों से दूर रख रहा है ताकि मेरा जो बेटमेंट का केस है उससे मैं डरी रहूं और दबी रहूं. So I don't know, she's playing with all everybody possible and हर बार वो अपने मुंह पर गिर जाती है जब भी वो झूठ बोलती है. वो हाइट के लिए झूठ बोली, श्वेता जी ने, मैंने, कितने लोगों ने, अंकिता ने, सबने पोस्ट कर दिया कि वो तो उड़ना चाहता था, वो तो फ्लाइट उड़ाना चाहता था. To get a license, right? I mean, जो प्लेन का लाइसेंस लेना चाहता है, अगर उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया हो गया, पहली बात तो आई थिंक जो सर्विसेज जो देते हैं वो ही उसको अलाउ नहीं करेंगे. आई मीन यूज सम कॉमन सेंस. जी. दूसरी बात जो बोलती है मेंटल डिप्रेस, वो तो हम सब ने खारिज कर दिया, वो बिल्कुल नहीं था. जितना करीब से मैं जानती हूँ, बाइपोलर डिप्रेस तो छोड़ दो, वो एक ऐसी रोशनी थी लवली जी कि अगर आप उसके ऑरा में आ जाओगे तो अगर आप डिप्रेस्ड हो और आप लो हो तो आप इनलाइटन फील करोगे. हम लोग नहीं जानते उसको, मतलब आप पर्सनली जानती हैं, हम लोग नहीं जानते. वी जस्ट सॉ हिज इंटरव्यू. द फर्स्ट थिंग दैट वुड स्ट्राइक अबाउट हिम इज हिज लाफ्टर. Absolutely, what a beautiful laughter. Yeah, the sound, his eyes, I mean, he would like glow in it. And the other person also, मतलब उसको हंसता हुआ देख करके आप भी स्माइल करने लगोगे. उसको ऐसे देखते रह जाओगे आप एक जब वो हंसता है, उसकी जो हरकतें हैं, उसका एक जो हीरो था ना, उसके अंदर बालों को ऐसा करना इन स्टाइल, उसके अंदर एक जो कुछ था, I have no name for this. एंड जिसने मेरे अंदर रोशनी जलाई है जस्टिस के लिए और बहुत सच्चाई के लिए और एक स्ट्रेंथ दी है मुझे
कि आज मैं खड़ी हूँ या मुझ पे इतने एलिगेशन है या मुझ पे डेथ थ्रेटनिंग्स आ रही हैं, यू नो, मेरे फैमिली को भी, तो मैं फिर भी खड़ी हूँ कि नहीं, मुझे पता है कि पता नहीं एक्सट्रीम में ये लोग क्या से क्या कर देंगे, गॉड नोज, बिकॉज शी इज वेरी पावरफुल, शी इज द ताई, आपने तो वो वीडियो देखा ही होगा, अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने क्लेम्स किए, और अब मेरा नाम वो ऐसे उड़ा रही है कि मैं माफिया से हूँ। तो मुझे तो खुशी हुई, चलो मैं माफिया से होती हूँ, एटलीस्ट मुझे कोई मारेगा तो नहीं। नहीं ऐसा, hopefully you are safe and there is nothing, क्योंकि बहुत सारे लोग सुशांत की फेवर में आ रहे हैं, in the interview रिया ने ये भी बोला कि जब वो पेरिस गए थे, he didn't even come out, और अब नॉर्मल लोग जिन्होंने सुशांत के साथ सड़क पे फोटोज खिंचाई, उन्होंने अपनी फोटोज निकालनी शुरू कर दी है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू टॉक, एवरीबडी वांट्स टू टेल कि कितनी फेक थी ये रिया, इवन ड्यूरिंग एन स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, लेट मी जस्ट पुट इट दैट वे, कि इतना स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देने के बाद भी, आई मीन really this is really very appalling कि ये इतना confidence, so do you personally feel कि this is all that the जो उनके वकील हैं, जो उनके केस हैंडल कर रहे हैं, they are kind of doing all the scripting for her, या is it about her family? Definitely it's involvement of everybody, जो भी पावर उसके पास है, जो कहीं तो बैकअप हो रहा है, बिकॉज इतना एक्सपेंसिव लॉयर, जिन्होंने, जब मैंने शो में बताया कि वो फ्री में काम कर रहे हैं, बिकॉज मुझे बताया गया था रिया के द्वारा, लेकिन अब उन्होंने कह दिया नहीं, मैंने तो बिल रेज किया है, तो अगर उनका बिल आएगा तो एक लड़की जिसकी 15-20 लाख सालाना इनकम है, वो तो उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती, right. तो कौन उन्हें अफोर्ड कर रहा है, ये वही लोग जाने। दूसरी चीज है कि कहीं तो बहुत बड़ी पावर है जिसकी वजह से उसको इतनी पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है, बावजूद इसके कि उसके खिलाफ एफआईआर है। अभी परसों ही जब वो सीबीआई से निकली तो पुलिस ने उनको ह्यूमन चेन बनाकर बचाया, घर पे ले गए, वो जर्नलिस्ट से लड़ाई की उन्होंने, तो ये तो पहली बार हो रहा है, और मजाक बना के रख दिया है इस सिस्टम का, जहाँ पे एक अक्यूज्ड को इस तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वे तो कह रहे हैं कि शुरू में जब फरवरी में उनके ब्रदर इन लॉ ने व्हाट्सएप पे कंप्लेंट भेजा था, वो मैं तो उसको रिटर्न ही मानती हूँ, वो लिख के ही भेजा था ऑब्वियसली, तब अगर प्रोटेक्शन दी होती तो शायद आज एसएसआर भी हमारे साथ होते। एब्सोल्युटली। तो इसी तरह से उनको मारने में 1, 2, 3, 4 लोगों ने, बहुत लोगों का हाथ है, उन सबके हाथ खून से रंगे हुए, लवली एंड वरुण, जिन्होंने उनकी कंप्लेन पर ध्यान नहीं दिया फरवरी में, या जिन्होंने उनके मैसेजेस को इग्नोर किया फैमिली के, या जिन्होंने जब वो मौका वारदात पर पहुंच गए 14 जून को और उन्होंने देखा कि शायद थोड़ी जान बाकी थी उनमें, और उन्हें जिस तरह से कवर करके ले चले गए, उसमें हर एक बंदा जो वहां मौजूद था जिसने कवर अप करने की कोशिश की है, वो सारे लोग, मुझे तो नहीं लगता भगवान उन्हें जिंदगी भर चैन से सोने देगा। क्या उन्हें नींद आएगी? आपको लगता है? इतने सीजन क्रिमिनल्स जिन्हें नींद भी आ रही है 2 महीने से और जिनका जमीर भी नहीं चिल्ला रहा है, कैसे मासूम इंसान की मौत को कवर अप कर चुके हैं और जिंदगी जी रहे हैं अपनी चुपचाप से, किसी ने पैसे खा लिए, किसी ने डर के मारे, या जो भी हो, इतना किस चीज का डर हो सकता है? मैं ये पूछती हूँ कि आप इतनी बड़ी सच्चाई छुपा के बैठे हो। Exactly. और मैं ये भी पढ़ रहा था, the doctors who did his postmortem, right? वो वेकेशन पे चले गए हैं या जो भी चले गए हैं, none of the doctors who performed his postmortem were a surgeon. They were not even authorized to do a postmortem. Forget एक स्टार का, एक रेगुलर अगर कोई इंसान होता और उसकी डेथ हुई होती, उसका भी नहीं कर सकते. So definitely there is a little, a lot of like backing. कुछ तो गलत लोग पीछे से कर रहे हैं. For what reason we don't know. देखिए कितनी अच्छी बात है कि पूरी दुनिया की नजर है आप तो हाँ इतनी दूर वेस्ट में बैठे हुए और आपको एक एक सच्चाई पता है. तो मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग ये जो इस तरह के लूपहोल्स हुए हैं कूपर हॉस्पिटल से या पोस्टमार्टम के, उसके वीडियोस बना कर पोस्ट कीजिए प्लीज, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं. मैंने लवली को भी बताया था, तो लोगों को पता चलेगा कि दुनिया में सबकी नजर हम पे है. ऐसा नहीं है कि हमने मुंबई में बस कुछ किया और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया और बस. ये इतिहास है, ये इतिहास में लिखा जाएगा कि इस तरह का रवैया हुआ. क्या पता वो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं हो, क्या पता वो डॉक्टर्स के बस ऐसे ही फर्जी नाम लिख दो इसीलिए कोई पकड़ में नहीं आ रहा है. तो आप पोस्टमार्टम की बात करिए तो बहुत सारे लोग ये जो डबल बॉडी निकला उस पर भी कह रहे हैं. तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं शायद वो दूसरी बॉडी का पोस्टमार्टम करके डाल दिया. एग्जैक्टली. और उसकी भी सही बातें नहीं बताई ना. जो पिक्चर्स आ रहे हैं कि उनको इतनी चोट लगी थी,
तो पोस्टमार्टम से तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। देखिए ये सब चीजें अब आ रही हैं। हम लोगों ने एक वर्चुअल, एक मेरी दोस्त थी जिन्होंने वर्चुअल उनका पोस्टमार्टम करवाया था थ्रू टेक्नोलॉजी के जरिए, और पूरी एक मुझे 27 पेज की रिपोर्ट भेजी थी। और ये बात है तकरीबन 1 महीना पहले की। और उसमें उन्होंने मुझे बताया था, स्मिता जी ये पूरी तरह से बहुत असॉल्ट किया गया पहले इन्हें, और इन्हें बहुत ब्रूटल मर्डर किया गया है। ये तक उन्होंने बताया था कि इनके पैर के तलवों पे इन्हें कोई भारी चीज से मारा गया, तभी तो पैर की देखिए दोनों हड्डियां डिसलोकेटेड तो दिख रही थी। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, पैर के नीचे तकिए रख दिए 2-3 ताकि वो ऐसे ही लगे, लेकिन वो क्या होता है ना, सच छुपता नहीं, जैसे कहते हैं ना, आप कुछ भी कर लो। उन्होंने खुद ही वो पिक्चर्स मॉर्फ किए, ऐसे लग रहा है लास्ट टाइम वाले, और फिर वायरल कर दिए खुद को बचाने के लिए कि ये तो सुसाइड ही था। लेकिन सच चीख चीख कर बोला है हर एक इंसान की बॉडी लैंग्वेज से जो इस क्राइम में शामिल था। Absolutely. और हालांकि हम थोड़ा ज्यादा उसमें डिटेल्स में चले गए, बट आई रियली वांट टू कीप द शो मोर अबाउट सुशांत। तो थोड़ा सा सुशांत के बारे में ये बताइए। यू बीइंग अ पोएट, आई एम श्योर यू हैड ग्रेट सेशंस। हम आपके कुछ पिक्चर्स देख रहे थे जो आपने रिलीज करी थी। यू यूज्ड टू ऑर्गेनाइज दीज इवेंट्स अपने घर पे भी, जहां पर सुशांत आते थे, अपनी फैमिली के साथ भी आते थे। सो टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट साइड ऑफ सुशांत, के किस तरह वो आपकी पोएट्री को एंजॉय करते थे। हम लोग शुरू में नेचुरली कनेक्ट हुए थे एजुकेशन के ऊपर, और मैं फिर उनके घर, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। उस दिन शिवरात्रि थी। जब पहली बार मैं कपरी हाइट्स के उनके घर में गई थी, तो वो उनका भी फास्ट था, मेरा भी फास्ट था, सुबह से प्रियंका का भी फास्ट था, और मैं उनकी छिछोरे की शूट पर उनसे मिली थी उस वक्त। और वो अपने पूरे गेटअप में जब मेरे सामने आए थे, तो मैं एक बार के लिए तो पहचानी भी नहीं थी उन्हें, क्योंकि वो जो सेकंड पार्ट है जिसमें वो हाफ बॉल्ड दिखाए हैं उसमें, उस पिक्चर में। And then he came and said, "Hi, how are you?" And I was looking at him and बोला, "Oh, Sushant, oh, how are you?" So and then we like started talking and he said, "आज चांद बहुत कमाल दिखेगा," क्योंकि शिवरात्रि के दिन चांद वैसे होता है जैसे शंकर भगवान के सर पे दिखाया जाता है। तो मैंने बोला, "क्या बात कर रहे हो, ऐसा दिखेगा?" तो उसने बोला, "हाँ, आप घर चलिए, आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली कुछ 12 बजे के आसपास," उन्होंने कहा, "ये होगा।" तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज आई ऑल्सो लव लुकिंग एट मून एंड स्टार्स। तो मैं तुरंत तैयार हो गई, मैंने बोला बिल्कुल मैं चलती हूँ। तो पर मैंने कहा मेरा फास्ट है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम लोग सब अपना कुछ आरती वारती सुन के और फास्ट ओपन करेंगे, एंड बाय द टाइम मून आ जाएगा। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर। और वहाँ फिर जगजीत सिंह साहब की बातें चल निकली, और उन्होंने, और जैसे ही मैंने जगजीत सिंह जी का नाम लिया, उन्होंने धड़ाक से अपने फ़ोन से कनेक्ट किया। उनका बहुत ही ब्यूटीफुल साउंड सिस्टम था, क्योंकि म्यूज़िक का इतना शौक था। उसके ऊपर जगजीत सिंह साहब की कुछ गज़लें चला दी। एंड देन ही सेड, क्या बताइए बताइए मुझे उनकी कुछ बातें बताइए, मेरा एक ही अफसोस है कि मैं उनसे नहीं मिल पाया। ही जस्ट लव जगजीत सिंह साहब, इतना प्यार करता, मुझे कहते बस उनका भेजते रहा करो मुझे, और मुझे उनकी बातें बताते रहा करो। तो वो एक क्यूरियस बच्चे की तरह वो सुनता रहता था वो बातें। और मैं उनको बहुत सारी चीज़ें बताती थी मेहदी हसन साहब की, जो मुझे पता थी, और मेरी जो मुलाकात हुई उनसे। और जगजीत सिंह साहब से तो बहुत लंबा रिश्ता रहा। तो वो वहाँ कनेक्ट हो गया। फिर उसे पता चला मैं भी पोएट हूँ, तो कुछ सुनाइए कुछ सुनाइए कुछ सुनाइए, हमेशा ऐसे हो जाता था। फिर मैं कुछ सुनाती थी, और फिर वो खो जाता था, और कुछ पेपर्स निकाल के लाता था अपने डेस्क में से, और उन पे कुछ स्क्रिबल करके उनका जवाब लिख के लाता था। और उसके जवाब जो होते थे, मैं आपको बता रही हूँ, इतने सीजन शायर की तरह इतने गहरे होते थे। आई रियली विश मैंने उनकी फोटोज ले लिए होते। कभी नहीं सोचा था कि, क्योंकि हमेशा सोचा था वो जमा करते रहा होगा और हम एक दिन बैठेंगे और फिर उनको देखेंगे। तो वो 4 लाइनें 2 लाइनें लिख कर लाता था, लेकिन इतनी गहराई होती थी उनमें कि हम लोग ऐसे टेकन अबैक हो जाते थे, तुमने लिखा? तो वो ऐसे मुंडी हिला के कहता, लाइक अ स्मॉल बेबी, हाँ अभी तो लिखा आपके सामने बालकनी में। एंड यू वुड बी लाइक, कमाल है यार, तुम तो जो चीज में जंप मारते हो उसमें तुम एक्सपर्ट हो जाते हो। तो अब गुरु तुम हो या मैं हूँ मुझे नहीं पता है। नहीं, वुड बी लाइक, नहीं नहीं गुरु आप ही रहोगे हमेशा। नहीं, आपकी आपने बुक्स भी लिखी हैं, तो कोई ऐसी आपने कोई उनके साथ शेयर की हो, कोई 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 नज्म या कोई कोई आपकी लिखी हुई चीजें जिसको सुशांत ने अपनी तरफ से भी कुछ इंटरप्रेट किया हो, या उन्होंने भी कुछ उसके जवाब में आपको लिखा हो, कोई ऐसी, या उसकी अपनी फेवरेट, आपकी फेवरेट कोई? देखिए, मैंने उनसे शेयर बहुत सारी की थी, और जब मैंने उनको अपनी किताब गिफ्ट की थी, ये किताब है, मैं आपको दिखाती हूँ, आपके लिए मैंने निकाल रखी है, इस द बुक, नज़्म इंतज़ार की। अब आप देख सकते हैं।
तो ये किताब ना मेरे घर पे जब भी वो आते थे तो मैं पढ़ा करती थी इसमें से कुछ ना कुछ। तो उन्होंने मुझे 2-3 बार ये कह दिया कि मुझे किताब दीजिए, मुझे किताब दीजिए ना। मुझे लगा कि ऐसे मुझे अच्छा फील कराने के लिए बोल रहे हैं और सीरियस नहीं, मेरी किताब कहाँ पढ़ेंगे, बोरिंग नज़्में। तो देन थर्ड टाइम जब मैं उनके घर गई तो उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की कि आप क्यों, आपको ऐसे लगता है कि मैं आपकी नज़्में नहीं समझ सकता इसलिए आप मुझे नहीं दे रही है ना, प्लीज़ मुझे अपनी बुक दीजिए। तो मैंने बोला आर यू सीरियस? ये सर यस। मैंने कहा ओके वेट। तो मेरे कार में बुक्स पड़ी रहती थी, मैंने ड्राइवर को फ़ोन करके बोला, तभी वो कपरी हाइट्स में रहते थे, मैंने कहा ये 15 फ्लोर पे ले आओ बुक। तो मैंने तुरंत उनको अपने हाथ से लिख के दी और उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उसको ऐसे अपने चेस्ट से लगाया और वो अपनी लाइब्रेरी में सबसे ऊपर रख दी। फिर सेकेंड टाइम जब मैं उनके घर गई तो काफ़ी कुछ चेंजेस थे उनके घर में। तो मैंने कहा मैं उनकी लाइब्रेरी जो छोटी सी एक बुक शेल्फ जैसी थी उसको देख रही थी। तो मैंने ऐसे ही गुस्सा दिखाया, मैंने कहा मेरी किताब यहाँ से आउट हो गई है सुशांत। So I was just looking at him and he just took out the book from the top of the shelf and he said नहीं बिल्कुल आउट नहीं हुई है, ये सबसे ज्यादा खास है और मेरे दिल के सबसे करीब है। क्या तो बात है। मतलब वो ऐसा इंसान था यार, वो मतलब क्या, क्या कैसा था वो एक्सप्रेस करना मेरे लिए एक शो में, या बहुत मुश्किल। हर बार मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ तो हर बार कोई नई चीज सामने आ जाती है। देन वो कहते थे अच्छा कुछ नया सुनाइए, क्या नया लिखा है कुछ सुनाइए, फिर मैं वो सुनाऊंगी, फिर वो तुरंत उसका जवाब देंगे या फिर खो जाएंगे, उसको इलेबोरेट करेंगे कि वाह 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 ये बात, और फिर यहाँ से आपने जो मोड़ दिया है इसको। तो वो समझते थे उसकी बारीकी। पोइट्री की एक नजाकत होती है, एक बारीकी होती है। कुछ लोगों के लिए पोइट्री एक खूबसूरत चीज होती है जो उन्हें शायद समझ में नहीं आती, बट उन्हें लगता है कुछ खूबसूरत है। कुछ लोगों को समझ में आती है और वो तारीफ कर देते हैं। लेकिन जब सुशांत सुनते थे तो वो पूरा उसमें उतर जाते थे। Like I और could also फिर tell, sorry, जी from जी his जी tweets and Instagram कि जैसे आप कह रही हैं कि कुछ लोगों के लिए तो एक अलग चीज होती है कि कभी किताब पढ़ा कभी है, बट वो अपना हर थॉट ही ट्राई टू एब्सोल्युटली एक्सप्रेस इट, जिसको वो सेल्फ म्यूजिंग और वो कहते थे। एग्जैक्टली एंड बिल्कुल दैट इज व्हाई आई थिंक दैट ही कनेक्टेड विथ यू। और उनके जी बॉलीवुड में कम ही फ्रेंड्स थे। हम लोग हमेशा ऐसे सोचते हैं, मतलब बहुत सारे यहाँ पर भी लोग हैं, हम लोग उनको देखते भी हैं, अभी जैसे दिखाते ही यूज्ड टू वर्क आउट सो मच, ही वाज सो डिसिप्लिन्ड। मतलब कैसे, हाउ डिड ही कनेक्ट विद सच पीपल? सब सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। बिल्कुल सच कहा लवली आपने, क्योंकि आपने जो कहा वो बहुत सच है कि बॉलीवुड में उनके बहुत गहरे वाले दोस्त नहीं थे, और उनके दोस्त गहरे ही होते थे। या तो वो सुपरफिशियल काम की वजह से कभी भी रिलेशन नहीं रखते थे कि जैसे दूसरे लोग रखते हैं कि मुझे पीआर शिप रखनी चाहिए, वो उन्हें आता ही नहीं था। या तो वो दोस्ती होगी तो वन ऑन वन लेवल पे कोई एक वेवलेंथ मिलती होगी तो वो होगी। क्योंकि जब भी उनके घर पे भी हमने महफिलें रखी तो बॉलीवुड से कोई बहुत बड़े सितारों को उन्होंने नहीं बुलाया, उन्होंने उन लोगों को इनवाइट किया जो समझते थे न्यूआंसेस म्यूजिक और पोइट्री दोनों के, और जो वाकई उनके नजदीक थे। तो ये तो क्या ही कहूंगी मैं कि एक ऐसा वक्त आ गया था कि ये जो औरत है ये इनकी लाइफ में आ गई, और इस तरह से उनको मतलब स्टार्स जो है या उसके बहुत ज्यादा बलवान रहे होंगे उस वक्त, और सुशांत के उस वक्त जरूर कमजोर रहे होंगे। मैं थोड़ा बहुत स्टार्स में मानती हूँ कि वो इन्फ्लुएंस में आ गया क्योंकि वो वल्नरेबल था उस वक्त। और वो पर्सनल लाइफ की जो वॉइड थी उसकी ना, जहाँ उसका हार्ट 2-3 बार टूट चुका था, और एक अपने ही जैसा इंसान देखता है, ऐसा जो इंसान होता है जो बहुत कमाल का इश्क करता है। जैसे मैं सुशांत को हमेशा कहती थी तुम्हारा इश्क जो है वो मीरा की तरह है कि तुम खो जाते हो पूरे, तुम अपना सब कुछ निछावर कर दोगे और फिर तुम देखोगे कि सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाला मुझे जहर पिला रहा है। तो मीरा ने जैसे जहर का प्याला भी पी लिया था राना के लिए, तो वो जहर का प्याला ही पीता चला गया। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि मतलब बिकॉज पीपल आर हिज फैंस, अब जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो वी कैन कनेक्ट, कि जैसे आप बोल रही हैं तो यू कुड बी इन हिज लाइफ, यू कुड कनेक्ट विथ हिम, आप उसकी दोस्त हो सकती हैं। लेकिन रिया ने जैसे अभी भी आके इंटरव्यू दिया, अभी भी हाउ शी इज ट्राइंग टू शेम हिम, तो ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि शी वाज लाइक प्लांटेड इन हिज लाइफ, किसी ने तो सोची समझी चाल यही चली। बात हो सकती है ना कि देखिए, एक तो आप 2 महीने में उभर आते हो सबसे बड़े लॉस से जिंदगी के, और वो भी आप उसको मान ही नहीं रहे हो कि वो मर्डर है पहले तो,
मान रहे हो तो ऑफ द रिकॉर्ड मान रहे हो, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जब आप बात करते हो तो फिर से आप उस बंदे को ब्लेम कर रहे हो। आपने उसके आप एक उन्होंने देखिए एक बहुत ही घटिया ऑडियो रिलीज किया है जिसमें श्रुति मोदी, शौमिक, रिया और पता नहीं कौन कौन लोग हैं जिनकी आवाजें सुनाई दे रही है, और सुशांत की भी आवाज सुनाई दे रही है, जहाँ पे वो कह रहा है मैं अपनी कार बेच दूंगा या वटेवर। सोचिए तो ये लोग इतनी पर्सनल गेट टुगेदर में भी रिकॉर्डिंग करते थे। Yeah. तो आपको लगता है ऐसे कोई करता है? हम लोग जब सब दोस्त मिलते हैं तो क्या रिकॉर्डिंग करके फिर उसको रखते हैं सबूत की तरह दिखाने के लिए? तो ये लोग हर एक चीज इन्होंने रखी है कि बाद में हम इसको यहाँ सबूत की तरह पेश करेंगे। तो इन्होंने अपने प्रोटेक्शन में बहुत सारी चीजें जमा करी हुई है। ये सबसे ज्यादा घटिया अटेम्प्ट था उनका जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की। एक तरफ वो मुझे कॉल पे कह रही है कि मैं तो उन लोगों का पर्दाफाश करूंगी जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो बैंकरप्ट था और उसके पास काम नहीं था, और एक तरफ आप ये ऑडियो रिलीज करके कहना चाहती हो कि उसके पास काम नहीं था और पैसे नहीं थे, वो अपनी कार बेचने की नौबत पे आ गया था। आप सोचिए ड्यूअल पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन हु एक्चुअली हरसेल्फ नीड्स मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट, आई गेस। और दूसरी बात फिर ये भी, जैसे शी क्लेम्स की, और ये शौविक तो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, मेरे से ज्यादा वो शौविक को पुश कर रहा था कि तुम हमारे साथ यूरोप चलो। वो कहीं भी, हमें भी देख के ये नहीं लगता है कि वो सुशांत और शौविक कहीं भी इतना कुछ कनेक्ट करते थे। बिल्कुल नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैंने भी एक बार ही शौविक को उनके घर पे देखा है, लेकिन मुझे ऐसे कुछ लगा नहीं। बट ये जरूर लगा कि पाइलॉन हो चुका था वो पूरी तरह से, और अपनी बड़ी बहन अगर वो उन पैसों तक पहुंच गई थी सुशांत के, तो उसके पैसों पे ट्राइंग टू फीड हिज ओन ड्रीम्स। उसे तो फॉरेन जाना था, पढ़ना था, सब कुछ करना था, तो आई एम श्योर ये सब पार्ट ऑफ द प्लान रहे होंगे कि यहीं से पैसा आएगा, राइट। फॉरेन एजुकेशन का। और भी बहुत सारे लोग भी अब जो जुड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं। एक चीज जो जो कॉमन आ रही है वो ये मैं पूछना भी चाहूंगा एक्चुअली कि आप जितनी बार भी उनके घर गई, आपने उनके द सो कॉल्ड जो टीम उनकी एक तरह से है, कभी आपको ऐसा लगा उनकी टीम के लोग जो भी हैं, चाहे वो मिरांडा है, चाहे वो कुक है, चाहे वो हेल्पर है, जितने भी थे, उनमें से कोई ऐसा लगा आपको कि मे बी ही वाज आल्सो प्लांटेड स्पेसिफिकली टू काइंड ऑफ गिव हिम ड्रग्स एंड ऑल दैट स्टफ? कभी ऐसा कुछ आपको लगा? देखो, जब तक मैं उनसे रेगुलर मिल रही थी वरुण, तब तक ड्रग्स का तो कोई सिनेरियो तब तो था ही नहीं। वो बिल्कुल इतने एनर्जेटिक रहते थे कि उनकी एनर्जी को मतलब ऐसे बिठाना पड़ता था कि थोड़े थक गए होंगे तो प्लीज बैठ जाओ, प्लीज खाना खा लो, कुछ पी लो, एंड देन ही वुड स्माइल एंड स्टार्ट जंपिंग अगेन फ्रॉम हियर टू देयर। इस कॉर्नर में ये एक्सप्लेन कर रहे, ये व्हाइट बोर्ड पे ये लिखा हुआ है, ये प्लान बता रहे हैं, मतलब इतना कुछ था उनके दिमाग में। और जहां तक उनके स्टाफ की बात है, जो सारे मैनेजर्स उनके साथ होते थे, उन पे हमारा ध्यान नहीं गया वरुण, क्योंकि आप जब किसी दोस्त के घर जाते हो और वहां पे लोग हैं अगर, तो आप उनको नोटिस इतना नहीं करते। लेकिन जहां तक मैंने देखा था 5-6 लड़के हमेशा होते थे लाइक रेडी टू ब्रिंग यू ग्लास ऑफ वाटर और वॉट एवर यू वॉन्ट। तो उस तरह की सर्विसेज वो लोग इमीडिएटली देते थे, लेकिन ये अंदाजा बिल्कुल हमें नहीं था उस वक्त तक। उनकी प्रोटीन बहुत अच्छा कर रही थी, एंड उस वक्त तक जो है काफी वेल ऑर्गेनाइज, जबकि वो रिया के आने के पहले सिंगल थे। एज अ सिंगल मैन घर जो जिस तरह से चल रहा था ना, इट वाज अमेजिंग द वे ही वाज मैनेजिंग। इनफैक्ट वो हर छोटे छोटे खर्चे का हिसाब रखते थे। हर 3-4 दिन में जितने भी बिल्स होते थे घर के, 100 रुपए का पनीर आया, आप सोचिए इतनी इतनी सी बातें तक के बिल्स उनके पास बकायदा जाते थे और वो चेक करते थे। और उनका जो भी हफ्ते का खर्चा था वो एक लिमिटेड खर्चा था। लेकिन रिया के आने के बाद कुछ जैसे जो कुक्स हैं उनके, जो उनकी लॉयल हैं आज भी, उन्होंने शिकायत शुरू कर दी थी कि अभी सडनली खाना बहुत वेस्ट हो रहा है, बहुत खर्चा हो रहा है एंड ऑल दैट। उन्होंने बहनों से शिकायत की थी ये दबी जुबानों से। लेकिन अब क्या किया जा सकता है ना, देखिए वो उस लाइफस्टाइल को फॉलो करने लग गई थी जहाँ पे एवरीडे पार्टीज हो रही थी, घर में बहुत सारा खाना बन रहा था, ड्रिंक्स हो रहे थे और जो भी चल रहा था व्हाटएवर, और पैसा जा रहा था सुशांत के अकाउंट से। ये बात तो मतलब उनकी सिस्टर्स भी जानती हैं और कुछ कर नहीं पाई उस चीज में, क्योंकि इतनी इंटरफेरेंस अच्छी भी नहीं है एक मैच्योर्ड लड़के की लाइफ में। फिर एब्सोल्युटली बहुत सारे लोग आपने वो बुक अपनी दिखाई थी, वो दोबारा देखना चाहते हैं और उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। तो ये किताब, हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको हिंदी नहीं आती, तो व्हाट इट्स रिटन इज
नज़्म इंतजार की, which means नज़्मों को क्या कहेंगे इंग्लिश में? Poetry. पोएट्री ऑफ इंतजार की को क्या कहेंगे? Wait. मैं भी परफेक्ट. हाँ, So basically I'm waiting for something in my life, and correct. this is the collection of those thoughts or dreams or emotions where I'm waiting for something. Got it. और और इसमें बहुत एक सारे, सीडी भी है, क्योंकि अरे बहुत वाह, लोग पढ़ नहीं सकते हिंदी, तो मैंने इसमें अपनी 14 बेस्ट पोएट्रीज रिसाइट करके रिकॉर्ड करके डाल दी थी, ताकि लोग सुनना आजकल पसंद करते हैं, तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट मैंने किया था. वेरी नाइस. और वैसे ही बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप, आई एम श्योर आपने सुशांत को भी सुनाई होगी कुछ, उस वैसी जी, हमें भी सुनाए अपनी ही कोई श्योर. written. ओके That would be ओके great. श्योर. ओके, तो जिसका ऑडियो कल मैंने आपको सुनाया था, जिसमें सुशांत मेरी Okay. just a Looks second, like, just a second. Yeah, actually I will have to go on the airplane mode. Yeah. ओके, सो वही पोएट्री जो मैं इश्करन जी के शो में मैंने एक वीडियो शेयर की थी, और बहुत एनकरेज हुए थे सुशांत उसका आंसर लिखने के लिए. और जब मैं उनके घर गई थी, तो उन्होंने मुझे मेरी 3 पोएट्रीज के घर जवाब भी लिख के सुनाए थे, और वो पेपर्स लेकिन उन्हीं के पास रह गए. वो मेरा सबसे ट्रेजर्ड चीज़ है दुनिया की, काश वो मुझे मिल जाती. एनीवेज, मैं वो आपको रिसाइट करके सुनाना चाहती हूँ. मैं बुतखाने में बहुत महफूज थी. इफ यू वांट, मैं इसको इंग्लिश में भी समझा सकती हूँ हर एक लाइन को, और अगर आप समझ रहे हो तो फिर मैं उसका टेम्पो, मतलब फ्लो नहीं खराब करूंगी, जैसे आप आप फ्लो ना बोले. खराब करें, आप पहले इसी में चले, उसके बाद फॉर पीपल हु ओके कैन नॉट अंडरस्टैंड, मे बी आप उसको ओके इंटरप्रिटेशन जरूर दें बाद में. ओके ओके. मैं बुतखाने में बहुत महफूज थी, तुमने क्यों फिर से जलाया मुझको. कुछ सोचूं, चाहूं, हसरत करूं, क्यों ये एहसास दिलाया मुझको. मेरे सीने में भी कुछ धड़कता है, मेरे सीने में भी कुछ धड़कता है, तुमने सामा की तरह चाहा मुझको. पल दो पल में इतना चाहा, पल दो पल में इतना चाहा, गैर थी क्यों अपना बनाया मुझको. युगों से पत्थर हो चुकी थी, युगों से पत्थर हो चुकी थी, क्यों फिर से अहिल्या बनाया मुझको. अपनी महफिलों में उजालों के लिए तुमने शम्मा की तरह जलाया मुझको. जिस राह पर जाना न था कभी, जिस राह पर जाना न था कभी, तुमने क्यों वही रास्ता दिखलाया मुझको. मैं बुतखाने में बहुत महफूज थी, तुमने क्यों फिर से जलाया मुझको, तुमने क्यों फिर से जलाया मुझको. शुक्रिया. बहुत प्यारी, बहुत प्यारी. और अगर तो आप, ये एक तरह से, पता है, सुशांत इस थॉट से रिलेट करती थी. ये मेरी एक ऐसी अधूरी इश्क की दास्तान है मेरी भी, जहाँ जैसे मैंने भी सब कुछ दे दिया है अपना, और मैं पत्थर हो चुकी हूँ. बुतखाना मतलब जहाँ पर मुर्दों को जहाँ रखते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट. मार्चर, हाँ, मॉर्चरी. सो मैं वहां पहुंच चुकी थी मर के. ओके, लेकिन तुम फिर मेरी जिंदगी में आए, एंड देन यू टच्ड मी एंड माय सोल, एंड you woke me up again. I did not want to come back to this fake world, but then you touched my soul somehow, and you showed me your fake love, and you brought me back to this fake world. And then I gradually realized after meeting you that you, the one who was claiming to be my finest lovers, or to love me from the bottom of your heart, but basically you used me as a what do you say, मैं तुमने शम्मा की तरह जलाया मुझको अपनी महफिलों में उजालों. So just to brighten your surrounding, you just flaunted me like a trophy woman. Okay, and I never wanted to go on that path again of fake love, which would break my heart into pieces, but you took me there, and you left me alone again to die. very, very beautifully written, and and as I can see, so much love you're getting for this as well. और लोग अब ये भी पूछ रहे हैं कि where can we get this book. Oh, this is available on Amazon. I think if you go on Vani Prakashan, Vani Prakashan is my publisher. Okay. सो अगर उनके साइट पे जाएंगे तो ये बुक मिल जाएगी आपको. मैं उनसे भी इत्तला कर दूंगी. आई इन्फॉर्म देम टू मेक दिस अवेलेबल.
so anybody can just buy it. राइट, सो जो लोग पूछ रहे हैं उनके लिए. बट एनीवे, जी सो यू नो, आपने बताया कि आपने ये बुक भी उनको दी थी. जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, या जितना मैंने, जैसे आप भी थोड़ा बता रही थी कि वो स्क्रिबल करते थे और वो लिखते थे, कभी सुशांत ने भी आपको बैठ के अपनी कोई ऐसी कोई चीज सुनाई हो जो आपको लाइक याद हो और आप हमसे शेयर करना चाहें? टू बी वेरी ऑनेस्ट, दो दो लाइनें लिखते थे वो, बहुत लंबी लंबी नहीं लिखते थे. अच्छा. और वो मेरे पोएट्री के जवाब में हमेशा कुछ जवाब दे देते थे. और क्योंकि उसके ऊपर फिर इतनी चर्चाएं हो जाती थी कि वो याद नहीं रहता था. एंड देन ही प्रॉमिस्ड मी ऑल्सो कि मैं ये दो दो लाइनों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, मैं आपकी तरह पूरी लंबी नज़में लिखूंगा और तब मेरी किताब आप छपवाएंगी. वाओ. सो दैट वाज माय कमिटमेंट टू हिम, जो अधूरा ही रह गया. This is so sad. This is so, you know, heartbreaking कि इतना talented, इतना you know, again, this has definitely left me speechless as well. कि, Yeah. you know, we've lost someone who could have really made a lot of difference in so many lives. He could have Absolutely. really. Varun, I have one more question. Yes. Sure. Smita ji, because she was close there. Look, I keep thinking that what we could have done that he would have still been here. So February, May, obviously the whole family knew that he was in this situation, and February में उन सब लोगों ने complain भी किया और सब था. Why did he go back to her? Because she kept calling him like an insane person. उसने ये चीज बहुत झूठ बोली है इंटरव्यू में कि वो चंडीगढ़ गए थे और अपने आप से ही वापस आ गए थे. उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स हैं जो कि प्रूफ है कि उसने 25 से 30 कॉल करके उसको पागल कर दिया था टोटली. एंड बस उसको वो फिल्म करनी थी जो उन लोगों ने साथ में प्लान की थी. एंड शी वाज ओनली इमोशनली ब्लैकमेलिंग हिम कि मेरी तो करियर खराब करके चले गए एंड ऑल दैट. तो नेचुरली इतना काइंड हार्टेड इंसान उस इमोशनल ट्रैप में आकर फिर से आ गया. तो अभी हमने like Kangana came and spoke to Arnav recently, and she talked about how these people manipulate people. So और अकेले तो रिया नहीं कर सकती. So she was doing it with all her family and obviously with these people. So they were trying to push him to the absolutely edge. And they succeeded in that. In what manner? I mean, honestly, family ने कोशिश की जबरदस्ती जाने की. February में भी, in fact, one of the sisters was pushing कि मैं तो आ रही हूँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है. और उसके फोन से रिप्लाई आते थे, नो नो नॉट नाउ. एंड आई एम वेरी श्योर बिकॉज व्हेन वी वर प्लानिंग दिस वैंकूवर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जहाँ उनकी फिल्म सोन चरैया को बेस्ट एशियन फिल्म का अवार्ड मिलने वाला था इनफैक्ट लास्ट ईयर ही. और उसके बाद हमारा प्लान था टू गो टू हाउस ऑफ लॉर्ड्स, वेयर लंदन में मैंने अपने फेस्टिवल का एक चैप्टर होस्ट किया था इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट. So he was very excited about going there and addressing people. In fact, when people came to know in Vancouver that he's going to come in few months, they already extended their invitation for one university over there that he will address 500 top engineers of the world. Can you believe it? And when I cracked this news to him, he was like, no, I can't do it. I mean, they must be knowing so much more than me. And I told him, no, you deserve it. And that's why they have decided to have you as a speaker. Then there was one organization, one university, a lot of universities in abroad basically, when they offer you these doctorates, honorary doctorates. So one of my friend has this kind of connection with a university in America, and they had approached me that can we felicitate Sushant with this doctorate. And I had shared that I also have that chat with me. And he was like, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैंने तो अपनी डिग्री भी पूरी नहीं की, और अगर आपको लगता है कि मैं इस काबिल हूँ तो आप जरूर करिए, बट मुझे बहुत डर लग रहा है. Imagine his humility. Imagine. So even like she's saying in that interview with Rajdeep Sardesai, I mean, I just feel that she exposed herself so much कि वो 1st June से ही कह रहा था कि तुम जाओ. What did that mean? Was he like done with her कि please तुम जाओ इधर से? See, to be very honest, I don't believe her at all. उसकी तीनों theories है, और तीनों थ्योरी में वो अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करती है, क्योंकि शायद वो ही इतने ड्रग के इम्पैक्ट में रहती है और इतने झूठ बोलती है कि उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने पहले क्या झूठ बोला था. तो पहले उसने कहा, उसने मुझे भेज दिया, तुम जाओ तुम जाओ तुम जाओ. ओके,
सेकेंडली उसने कहा हमारा झगड़ा हो गया था और क्योंकि मैं बीमार थी और वो मेरी टेक केयर नहीं करना चाहता था तो उसने मुझे भेज दिया। थर्डली उसने कहा, तीसरी जो चीज उसने कही, उसने ये कहा कि मीतू दीदी आने वाली थी इसलिए जब भी उसकी बहनें आती थी वो मुझे भेज देता था, थोड़े दिनों के लिए मैं गई थी और मैं तो वापस आने वाली थी। तो उसकी खुद ही की झूठ को वो खुद ही फिर वापस कॉन्ट्राडिक्ट करती बाय सेइंग कि 8 तारीख 9 तारीख को ऐसा कुछ हुआ कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। जब आप थोड़े समय के लिए गए थे और आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करके गए थे तो फिर आपने ब्लॉक क्यों किया? बहुत सारी चीजें, मतलब उसकी झूठ ज्यादा दूर तक नहीं चल पाते, उसके झूठ के पैर बहुत छोटे हैं वरुण। सही कहा आपने। और सारे लोग जैसे और भी फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि दे एक कमेंट है जो मुझे भी आई कैन रिलेट टू इट। दे से लास्ट 3 महीनों में हमारा रोज दिल टूट रहा है, हम रोज मर रहे हैं। एंड दैट्स अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू आस्क I see people join here from Bhutan, from Bangladesh, from Australia, Canada, New Zealand, US के लोग हैं, इंडिया तो है ही है। कोई ऐसी कंट्री नहीं बची जहां पर लोग इस टाइम पे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रहे। दिस इज सो हार्ट वार्मिंग एज वेल, बट एट द सेम टाइम दिस इज हार्ट ब्रेकिंग के हम किसी खुशी के बारे में ऐसे कनेक्ट होके बात करते हैं, हमें ज्यादा अच्छा लगता है। बट वी लॉस्ट दिस बॉय। बट एंड गोइंग बैक टू सुशांत का एक कमेंट जो उसने एक पोस्ट पे लिखा था कि प्लीज वॉच माय मूवी, प्लीज वॉच माय फिल्म, अदरवाइज ये लोग मुझे निकाल देंगे। कभी उस चीज के बारे में आपके साथ कभी बात हुई थी ऐसे कि मेरे साथ ये गैंगिज्म हो रहा है, या मेरे साथ ये ग्रुप बना के मुझे आइसोलेट कर रहे हैं, या जैसे मैंने कई जगह सुना है कि he was not very happy the way his ये जो ब्लाइंड आर्टिकल्स आ रहे थे and all that, तो उसके बारे में कभी कोई बात हुई थी आपसे? ब्लाइंड आर्टिकल्स तो नेचुरली बहुत ही गंदे और बहुत ही वाहियात थे। आई एम श्योर हम सबको कैंपेन्स करनी चाहिए, स्पेशली राजीव मसंद, रोहिणी अय्यर एंड पिंक विला के अगेंस्ट। और अगर हम इतनी सारी ग्लोबल वॉइसेस उनके लिए लिखेंगे तो जरूर मैं तो चाहती हूँ जिंदगी भर के लिए राजीव मसंद अब पेन नहीं उठाएं, क्योंकि उन्होंने जितनी शर्मनाक, गंदे, झूठे, वाहियात आर्टिकल्स लिखे हैं सुशांत को मलाइन करने के लिए, जिनसे सुशांत अफेक्ट हुए हैं। और क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव बंदा था कि वो हर एक छोटी चीज से अफेक्ट होता था। ये तो झूठे आर्टिकल थे और उसे वो बहुत इमेज केयरिंग था और इसीलिए वो अपने आप को बहुत डिग्निटी से कैरी हमेशा करता था। जैसा वो था, वो कभी कोई ऐसा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट या हरकत नहीं करता था। तो सोचिए ब्लाइंड आर्टिकल्स ने उसको कितना परेशान किया होगा। जहां तक फिल्मी करियर की बात थी, यस, उसके साथ जो कुछ हुआ था, जिस तरह से उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज नहीं किया जा रहा था और रणवीर सिंह उसकी फिल्में करते चले जा रहे थे, या अवार्ड शोज में जैसे वो ह्यूमिलिएट होता था लगातार, और उसके को स्टार को बेस्ट डेब्यू एक्टर्स, बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड देते थे और उसको देते थे बेस्ट पर्सन ऑन सोशल मीडिया। आई मीन कम ऑन, व्हाट काइंड ऑफ अवार्ड इज दिस? आर यू किडिंग मी? मैं क्या है ये अवार्ड्स? ऑनेस्टली वी शुड बॉयकॉट ऑल दीज पेड अवार्ड्स। कुछ नहीं है ये, वहां पे जो लोग आके परफॉर्म कर देते हैं या थोड़ा पैसा दे देते हैं शायद ऑर्गेनाइजर्स को, उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं। कहाँ कहाँ चला गया फिल्म फेयर का वो अवार्ड, जब शनमुखानंद हॉल में अवार्ड होता था और दिलीप कुमार साहब और सुनील दत्त साहब और ये सारे दिग्गज आते थे और जेन्युइन अवार्ड्स होते थे जो वहीं पर अनाउंस किए जाते थे। तो जो हिंदी सिनेमा था ना वरुण, उसको पूरा ओवरशैडो कर लिया बॉलीवुड वर्ड ने। सो बॉलीवुड खत्म हो जाना चाहिए, सिनेमा रहना चाहिए, बिकॉज सिनेमा आर्ट है, सिनेमा हमारी कल्चर है इंडियन। बट जैसे सत्यजीत रे साहब थे और बहुत सारे इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग थे, ऋषिकेश दा थे, और जो संगीतकार थे उस वक्त में, सिंगर्स थे, किशोर कुमार साहब, मोहम्मद, देखिए किशोर कुमार साहब और मोहम्मद रफी साहब, दो लेजेंडरी सिंगर एक वक्त में कैसे रहे आप देखिएगा, कि जबकि कभी इनके गाने इनको मिल जाते थे, इनको मिल जाते थे, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के गाने सुनते थे तो मैंने देखा है इतनी म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी। एक बार कहीं अमेरिका के शो की बात मैंने सुनी थी किशोर दा की, कि रफी साहब गा रहे थे, किशोर साहब ने अपना शो फिनिश किया था और रफी साहब अपना आखिरी गाना गा रहे थे, तो किशोर कुमार साहब ने स्टेज पर जाकर ऐसे दंडवत प्रणाम किया था कि ये गाना तो मैं नहीं गा सकता। तो ये लेजेंड्स होते हैं, एग्जैक्टली, ये आर्टिस्ट होते हैं जिन्हें दूसरे की आर्ट की अपनी आर्ट से ज्यादा कदर होती है। और यहाँ जो है वो वल्चर्स हैं। yep. जो कहती है ना कंगना गली बॉय के लिए, बताइए कितनी वाहियात पिक्चर थी, आप खुद बताइए। और कहाँ छिछोरे और कहाँ सोन चिरई और कहाँ गली बॉय, मतलब
क्या कर रहे हैं आप और किस तरह का कल्चर बेचना चाहते हैं आप अपनी आगे की जनरेशन को, और आप उसको बेस्ट फिल्म बेस्ट एक्टर का अवार्ड देते हैं। राइट राइट। तो ये दुख तो होगा ही ना, जब सुशांत थे तो उन्हें दुख तो धक्का लगता ही होगा उन्हें बहुत ज्यादा। वो शेयर किससे करते थे इन फिल्मी धक्कों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आई कैन इमेजिन किस तरह से धक्का लगता होगा। आज मेरे बारे में जैसे जो बातें लिखी जा रही है, हालांकि मुझे उनसे धक्का नहीं लगता, लेकिन ये अफसोस होता है कि ये सब पेड आर्टिकल्स हैं और ये लोग अब किसी भी लेवल पर उतर रहे हैं। किसी भी लेवल पे आप किसी की पर्सनल लाइफ में स्मिता ने ये झूठ बोला, स्मिता को, अरे मैंने एक एविडेंसेस मांगे, सारे जितने भी फैंस इधर उधर से स्कैटर्ड एविडेंसेस हैं, तो मैंने कहा लेट्स कंपाइल इट इन वन पीडीएफ एंड गिव इट टू द फैमिली, बिकॉज वो इतनी दुखी थी 1 महीने से, उन्होंने बहुत चीजें मिस की है, बहुत चीजें उन्होंने फॉलो नहीं की है। वो मेरी बात चल रही थी फैमिली से कि उन्हें कुछ चीजें पता नहीं थी, तो हम उन्हें जब दे सकेंगे तो वो पूरा स्टडी करके बात कर सकते हैं सीबीआई से। तो ये लोग मेरे खिलाफ कहने लगे सोशल मीडिया पे, स्मिता एविडेंसेस लेके डिस्ट्रॉय कर देगी। तो भाई मैं डिस्ट्रॉय कैसे करूंगी, अगर मैंने लिया है तो कहीं ना कहीं तो और रहेगा ही ना। इतनी मूर्खता है ये लोग। अच्छा, जो पेड पीआर है ना रिया का, उनको मैं यहाँ से जरूर मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जिनको भी पे कर रहे हैं मत कीजिए, क्योंकि वो बहुत गंदा पीआर कर रहे हैं। वो अपना काम बिल्कुल जेन्युइननेस से नहीं कर रहे और सारी झूठी खबरें ला रहे हैं, कोई भी पुख्ता खबर नहीं ला रहे, तो प्लीज पे मत कीजिएगा। केस ही खराब कर रहे हैं। तो अभी हमने इतना बॉलीवुड की बात करी, एक और जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, and since you've been there, you've seen a lot of all this happening in the Bollywood industry. इस टाइम पे बड़े बड़े the so called superstars, बड़े बड़े artists, they're all quiet. कोई बोल नहीं रहा, कोई सपोर्ट में ही नहीं आ रहा। What do you have to think, or what do you have to say about that? See, they are all fake. So अब हम अपनी आंखें खोल लें। इट्स हाई टाइम हम अपना आइडल मानना और अपना हीरो मानना इन लोगों को छोड़ दें। कोई सदी का महानायक नहीं है, कोई किंग खान नहीं है, कोई हमारा भाई नहीं है। हमारे असली हीरो वो लोग हैं जिनमें हिम्मत है, जिनमें बॉल्स हैं, जिनमें जिगर है सच्चाई के लिए खड़े होने की, जो अगर पर्दे पे एज ए हीरो प्ले करते हैं तो असली जिंदगी में उनमें वो ताकत है। असली जिंदगी में अगर वो फुस हो जाते हैं एक किसी के लिए खड़े होने के लिए, एक स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो वो हीरो नहीं, जीरो है। सॉरी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। Go ahead. They portray so much courage on screen, लेकिन एक्चुअली में उनका कुछ भी नहीं है। लाइक सुशांत के मैंने लुक व्हेन ही वाज देयर, इतना नेगेटिव पीआर मशीनरी था और लोगों के इतने पॉजिटिव कि वी एज ऑडियंस वी फील अशेम्ड कि क्यों हमने नहीं देखा। मतलब काम, जैसे मैंने तो उसकी हर मूवी थिएटर में देखी थी एंड आई अप्रिशिएटेड हिम, बट फिर भी समहाउ जब पीआर मशीनरी की बात आती है कि ये जिम से निकल रहा है, ये एयरपोर्ट लुक है, इसका बच्चा ये कर रहा है, छोटे से बच्चों को, तो उसमें हम कभी भी सुशांत को नहीं देखते थे। क्योंकि आप एक बात मानिएगा लवली, ये जो अपने बच्चों को पैदा होते ही सोशल मीडिया स्टार बना रहे हैं, ट्रस्ट मी, क्योंकि बच्चों में इतनी एरोगेंस आ जाएगी बड़े होते। तो जो मुझे इस बच्चे में, जो एक बच्चा बहुत सोशल मीडिया स्टार बन भी गया है, उस बच्चे में ऑलरेडी इतनी एरोगेंस है कि वो देखिएगा क्या करता है फिर अपने पेरेंट्स के साथ बड़ा होके, क्योंकि अभी से आप उसके दिमाग में फीड कर दे रहे हो, ओ तू तो स्टार है, तू ये तुझे क्लिक किया जा रहा है, तो क्या होगा बड़े होके? व्हाट आर यू फीडिंग हिम? Why can't you make him just a normal person who can earn the respect? You say that Sushant came from a very humble background and he started in 2013. He proved कि बिना कोई चमचागिरी के, बिना कुछ के भी अपने टैलेंट के बल पे we can achieve something जो कि इन लोगों से देखा नहीं गया। They couldn't see that. I mean, he was unstoppable. उतने ही दिन में, मतलब all the movies that he did, either commercial success or critical acclaim. तो and from every character, like जैसे अब हम इनको कहते हैं he took something, जैसे जब आप उसके बारे में वो बोल रही थी कि about the education he was talking, somewhere I feel कि काई पोचे के ईशान से उसने he took that and from every character made him a better person. Absolutely. तो यही तो होता है ना आर्टिस्ट, कि वो निखरता चला जाता है। आर्ट इज लाइक अ शार्पनर, सो एवरी टाइम यू लर्न मोर, यू आर मोर शार्पन्ड and you are more enlightened. अगर आपकी आर्ट आपको एनलाइटन नहीं कर रही है तो वो वेस्ट है आपके लिए। अगर आपको वो एक घटिया इंसान बनाई जा रही है और आप वही हैं अभी तक, आप कहीं आगे बढ़े ही नहीं, आपकी जर्नी जो स्पिरिचुअल जर्नी है या इमोशनल जर्नी है या इंटेलेक्चुअल जर्नी आगे ही नहीं बढ़ी, आप वहीं के वहीं चिपके हो, तो फिर आप खत्म हो, आप जिंदा हो ही नहीं। आखिरी में एक और बात,
आपका ये दिशा सलियन से केस का जो कनेक्ट बोल रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है? देखिए, अगर इतनी पावर नहीं होती इस केस को कवर अप करने के लिए, तो ये एक मामूली उनके लिए तो खैर सुशांत कोई स्टार भी नहीं था, है ना। हमारी जो गवर्नमेंट है उनके लिए, हमारे जो बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं उनके लिए तो एक मामूली आदमी था, उसकी मौत को क्यों इतना बनाया जा रहा है, राइट। तो अगर ये सिर्फ एक सुशांत का केस होता तो उन्हें कोई तवज्जो देनी नहीं थी। ये दोनों केस कनेक्टेड हैं और वही कोई चीज है जो सुशांत जानता था, जो वो एक्सपोज करना चाहता था। और इसीलिए ये जो मशीनरी चल रही है पावर और पैसे की, कि इतना पैसा बहाया जा रहा है रिया को बचाने के लिए और सुशांत को गलत साबित करने के लिए, ताकि वो पुराना केस जो है वो भी आत्महत्या का नजर आए और ये भी आत्महत्या का नजर आए। लेकिन इन लोगों को इतनी मुंह की खानी पड़ी है कि उनको लगा कि पब्लिक बेवकूफ है और हम लोग जो भी वो हमें बेचेंगे वो वी विल बाय दैट। क्योंकि हम इतने दिन से ले रहे हैं ना, दिव्या भारती जी, खान, श्रीदेवी और सो मेनी अदर्स। अब हम देखते हैं जो कुछ थोड़े छोटे स्टार्स होते हैं जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, जैसे अब नाम उठ के आ रहा है कुणाल सिंह करके बंदा था जी। तो क्योंकि पब्लिक हमेशा लेती रही है। समीर शर्मा को सोचिए कि उसको क्या कमी थी लाइफ में, वो तो इतना सक्सेसफुल टीवी स्टार था, उसने सब स्टार्स के साथ फिल्मों में काम किया था, उसको उसकी इनकम अच्छी थी, वो अच्छा खुश से रह रहा था। उसके जस्ट कुछ दिनों पहले की वीडियोस देखिए, वो खुश है, वो सडनली अपने आप को टांग लेगा। क्यों बाय करते हैं लोग ये सब थ्योरी? आवाज उठानी बहुत जरूरी है और हाई टाइम है ये, मैं आपको बोलती हूँ। So मैं अगेन नॉर्मली मैं ऐसे कमेंट्स और ऐसी चीजों को इनकरेज तो नहीं करता, बट हमारी इस फेसबुक लाइव पे आई थिंक देयर आर फ्यू पीपल हु कनेक्टेड, और मैं मिस कर रहा था कुछ कमेंट्स आते हुए। सो जस्ट बिकॉज आई हैव स्मिता एंड आई नो हाउ बोल्ड एंड हाउ ब्रेव यू आर, I would like you to address a few things for these people who are again pointing fingers on you, and बाद में इस chat जब हमारा session खत्म होगा, I would love you to kind of look at those messages and maybe if possible, if you feel like you respond to them offline as well. But एक चीज आ रही है जो उन्होंने लिखा है, again I'm not gonna everybody can know who this person is. She is saying रिया से आपकी कोई chat हुई थी जिसके अंदर आपने सुशांत की फैमिली को बहुत गलत बोला. You want to comment on that? तो देखिए, वो चैट तो सबने देखी हुई है और मैंने सुशांत की फैमिली को गलत नहीं बोला, गलत उसने बोला। मैंने सिर्फ ये कहा, उसने मुझे कहा मेरा सामान, उसने क्या किया, बहुत स्मार्टली वो चैट रिलीज की है। उसने पहले मांगा मेरा ये सामान, मेरा ये सामान, मेरा ये सामान मुझे चाहिए, आप दिला दीजिए। तो मैंने लिखा कि वो सब ले गए हैं गुड़गांव, सारा सामान, तुम्हारा सामान नहीं है। तो उसने कहा कि आप मुझे दिला दीजिए। तो मैंने लिखा है कि प्लीज राइट अ लेटर टू पुलिस एंड आस्क देम टू गिव योर स्टफ बैक। So what is wrong in that? Tell me. अगर मैंने लिखा, क्योंकि वो इतना क्लेम करती है कि मैं, पुलिस तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, पुलिस मुझे ये कर रही है, तो मैंने लगा अपना सामान तुम मांग लो, मैं कैसे बीच में इंटरफेयर करूं और मैं क्यों करूं? And why she asking me to do it? And to be very honest, उसने ये सारी बातचीत मुझसे कर ली और फिर मुझसे चैट पे वही बातें की, बिकॉज शी मे बी वांटेड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फैमिली ने वो ऑनेस्टली देखने की भी वो नहीं की, क्योंकि वो इतना फेथ करते हैं। मेरी सिद्धार्थ से कल ही 2 बार बात हुई, मुझे मेरी उनके लॉयर से भी बात हुई और उन्होंने कहा नहीं हम ये समझते हैं, क्योंकि looks like we lost her. And maybe she will join back in. So, for people who are, kind of posting some nasty comments, yes, I think she will be able to address you guys as well. और आपके सब जवाब भी वो देगी. And I really, commend her. अभी थोड़े से questions मेरे और बचे थे, but looks like, maybe it's been a long 1 hour session already. तो हो सकता है कि उनके फोन की चार्ज खत्म हो गया हो and we lost her, and we'll wait for a few minutes to see if she can join back. But lovely, this was really a very eye opener kind of session, and बहुत सारी चीजें पता लगी सुशांत के बारे में. What do you take on that? No, and to all those, उन लोगों को मैं ये भी कहती हूँ कि don't go by what these people are releasing, because वो बहुत ही smartly out of context एक दो मैसेज कहीं से निकाल के उन्होंने तो ये भी रिलीज कर दिया था कि सुशांत हरसेल्फ इज सेइंग दैट, वो पूरा लंबा था, उसमें से एक लाइन की प्रियंका इज एन इविल स्पिरिट, जो कि मतलब उसके बाद उसकी सिस्टर ने वो पोएट्री पूरी रिलीज की. मीन वी अंडरस्टैंड. और ये बोल के कि भाई बहनों में झगड़ा है, तुम
अपने आप को क्या बोलते हैं उसको, निर्दोष नहीं साबित कर सकते कि आई डिडंट डू द क्राइम. मतलब एक फैमिली है, हम ही लोग, वी आर 3 sisters, 1 brother, मेरी मम्मी है, वी फाइट ऑल द टाइम, बट दैट डजंट मीन दैट वी इंटेंट हार्म टू ईच अदर. फैमिली फिर भी फैमिली होती है. सो एंड व्हाट शी डिड, इसका सबसे बड़ा तो सबूत यही है कि वट एवर द ब्रदर इन लॉ वाज सेइंग इन फेब्रुअरी, इट केम ट्रू इन जून. दैट्स द सैडेस्ट पार्ट. कि मुझे यही लगता है कि सब यही कह रहे हैं कि अभी जो मुंबई पुलिस एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर जा रही है, अगर तब देख लिया होता तो शायद ये नहीं होता. और दूसरा, लोग ये जो कह रहे हैं कि मीडिया सर्कस बना रहे हैं, तो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि उसके ब्रदर इन लॉ ने अगर इंस्टेड ऑफ पुलिस वो व्हाट्सएप अगर मीडिया को भेज दी होती तो शायद मीडिया वुड हैव टेकन सम एक्शन, और ये नहीं होता. एग्जैक्टली. नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो अभी और भी निकलेंगी. बहुत कुछ बाहर आएगा, और और भी पता नहीं कितने नाम और फंसेंगे इस चीज में. और बट वन थिंग दैट हैज रियली रियली कम आउट very clearly, which is crystal clear to everyone right now, कि Sushant was not a mentally unstable person. He was not going through. Obviously, there are times, मेरी लाइफ में भी होता है. I'm sure, Lovely, आपकी लाइफ में भी होता होगा. There could be bad days as well, where you feel very low. You feel, कि as if everything is going against you, और बहुत low energy होती है. तो वो हर किसी की लाइफ में आता है. There's nothing special about सुशांत की लाइफ में. कुछ ऐसा नहीं था कि सब कुछ अच्छा ही होगा वो भी हो सकता है. बट एट द सेम टाइम, द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, इतने लेवल पे आके जो जो लोगों के साथ कनेक्ट वो बनाते थे, चाहे वो कोई स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे वो मूवी का डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हर लेवल के साथ ही connected so well. And so we all know what kind of a person he was. And talking to Smita, I think we really understood that pretty well, how well he connected with different domains में जो लोग थे, चाहे वो सिंगर, आर्टिस्ट, पोएट, and everybody. तो ये कहना, उसका करेक्टर असैसिनेट करना, उसके बारे में गलत चीजें बोलना, एंड स्पेशली फ्रॉम समवन हु वाज presumably his girlfriend, is a really a sham. It's actually very shameful for anybody in that relationship. ऐसे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत होते हैं. अगर ऐसे करने लग जाएं कि once you're that ब्रेकअप के बाद अगर उनके बारे में ऐसी बातें बोले कि भाई वो स्मोक करते थे, वो पॉट करते थे, वो marijuana करते थे, and all that, that is all very very bad on her part and her PR, जो लगे हैं. But at the same time, I think, looks like Smita is coming back. Yeah. So we should definitely have. Hi, I'm back. Hello. Yeah. Sorry, my battery died because whole day there were like channels calling me. We so I'm thought so. charging it and talking to you now. No, thank you so much, Smita. Thank you. आप वापस आई, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि हो सकता है कि आपके फोन की बैटरी डिस्चार्ज होगी जिस वजह से. But you were addressing some comments, so please go ahead. I would love you to. So that's what. So this woman basically, played, with the basically the kindness I was showing. Maybe I was not saying anything because that was the strategy which me, Priyanka, Siddharth, and one of our common friend had, adapted. That we will also, see and check what she is up to, what is in her heart, and if she knows about anything. So we were trying to do that, because nowhere I would say that she was my friend. To be a friend, first you need to naturally be that loyal, and that goodness you need to show, which we nobody trust me, we are 7 and 8 people in this closed circuit of Sushant who met very very frequently, and everybody just discarded her during the first, second or third meeting only, and she kind of read that, और इसीलिए उसने एक एक करके हम सबको सफाया कर दिया था सुशांत की लाइफ से. अगर वो मेरी मतलब इतनी अच्छी दोस्त होती और मुझे अपना करीबी मान रही थी, तो वो मुझे क्यों निकालती उनकी लाइफ से. बिल्कुल. तो जी, शी इज डूइंग द सेम थिंग दैट शी डिड व्हेन ही वाज अलाइव. पहले वो थे तब भी एक एक करके फ्रेंड्स को हटाए, तो नाउ आल्सो शी फील्स एवरीबॉडी हु इज स्टैंडिंग अप फॉर हिम. तो दिस इज हाउ शी कैन डिस्क्रेडिट देम. और कोई बात नहीं, आप लोगों के सामने वो कॉल बहुत जल्दी आ जाएगी. मैं उसका इसलिए ज्यादा नाम लेना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो एक टेस्टिमनी बनेगा जहाँ पर मेरी जो उनसे बातचीत हुई है, जो उनकी फैमिली को मैंने पहुंचा दी है, उनके लॉयर को मैंने पहुंचा दी है,
तो वो टेस्टिमनी बनेगा कि वो किस तरह से डबल गेम खेलती हैं, आप देखिएगा। और जो भी लोग मुझ पे डाउट कर रहे हैं, वो सारे डाउट्स मैं अभी कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करूंगी। अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट करना है तो मुझ पे ट्रस्ट करिए, मैं अपने लिए जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी, क्योंकि मैं सुशांत के लिए क्या हूँ और सुशांत मेरे लिए क्या है, और जो उनकी क्लोज नेट फैमिली जो मुझे जानती है वो बिल्कुल मेरे में फेथ करती है, और इसलिए मैं किसी को भी जस्टिफाई नहीं करूंगी। Absolutely. And you know, I also want to be mindful of the time. So last के दो तीन क्वेश्चन जरूर स्मिता जो मैं जरूर पूछना चाहूंगा for जी everybody. One जी is, you know, since you already mentioned you were close to the sister, so जी family के साथ इस time पे, you know, if you could tell a little bit to everyone, तो वो इस time पे what are they going through, what are they thinking, और इस पूरे रिया एंगल पे, you know, अगर वो कुछ बोल रही हैं तो, you know, what are their thoughts? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत अच्छी परवरिश है इस फैमिली की, तो जितनी गंदगी रिया ने उछाली, मैंने इस लास्ट कॉल में भी रिया को ये बात बोली थी जो ऑन रिकॉर्ड है, कि फैमिली तुम्हारे बारे में कुछ भी गंदा नहीं बोल रही है। मैं श्वेता को भी फॉलो करती हूँ सोशल मीडिया पे, वो इतनी डिग्निटी और ग्रेस मेंटेन कर रही है, जबकि खोया उन्होंने है। प्रियंका तो इस हाल में ही नहीं है कि वो कुछ बात कर सके, वो इतनी टूट गई है, जैसे कि मैंने बताया कि दोनों सोलमेट्स थे, सुशांत और प्रियंका ट्विन्स की तरह थे। तो जैसे उनका आधा भाग ही चला गया, तो वो अभी तक उससे सरफेस नहीं हो पाई है, वो ठीक से बात नहीं कर पाती। मेरी बात सिद्धार्थ से होती है, क्योंकि नेचुरली सिद्धार्थ को थोड़ा स्ट्रांग अब होना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है केस में, और बीइंग यू नो द दमाद ऑफ द फैमिली नेचुरली इज हियर इन दिल्ली, उनको डे टू डे चीज़ों में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो सिद्धार्थ बात करते हैं, और लेकिन हर रोज़ यही बात होती है कि हमारी लाइफ एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है स्मिता, और हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ से शुरू करेंगे। अब क्या हम शुरू करेंगे तो हम कहाँ ख़त्म करेंगे, पता नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे। मतलब वो इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना उनके दिमाग में, कि अब सुशांत के बिना जैसे एक लॉस्ट फील हो रहा है उन्हें, एंड वी ऑल, आई इवन आई एम फीलिंग दैट, क्योंकि कितना बड़ा हिस्सा चला गया है। मैंने अपने बिजनेस के बारे में 2.5-3 महीने से सोचा ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अब मेरा दिल भी नहीं है, दिल ही नहीं है किसी चीज़ में। ये मैं बस इसी चीज़ में टोटली इनग्रॉस्ड हूँ, और जब तक शायद इसका फैसला नहीं होगा मैं कुछ और करना भी नहीं चाहूँगी। That says a lot about your pain as well, और हम सबकी pain भी यही है. But another thing, and again I let Lovely maybe ask her question as well. But one thing which we all are very skeptical. Again, you know, हम लोग बहुत दूर हैं, हम लोग अपनी लाइफ में बहुत बिजी भी रहते हैं, साथ साथ we are still doing whatever we can as a supporter of this cause. But Oh, you guys are doing amazing, let me tell you. पूरी दुनिया नोटिस कर रही है आपने जो कैंपेन किया है, एंड इतना कमाल का काम आप लोग कर रहे हैं, कि ताकि न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि हर एक कंट्री ने ये नोटिस किया, जितने बड़े बड़े बिलबोर्ड्स आप लोगों ने लगा दिए हैं, और ये आइडिया आपके दिमाग में आया है, वो कमाल का आइडिया है। और इस तरह की जो कैंपेन्स आप कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मुझे पता है अमेरिका में रहते हुए या बाहर देश में रहते हुए आप लोगों की लाइफ कितनी बिजी होती है, इंडिया की तरह आसान नहीं है। एंड आई सल्यूट टू द स्पिरिट ऑफ ऑल ऑफ यू हु आर डूइंग दिस फॉर द जस्टिस फॉर सुशांत। अमेजिंग अमेजिंग वर्क। कलिश्करन भी बोल रहे थे, इनफैक्ट आपने सुना होगा हमारे लाइव में, अबाउट द कैंपेन्स यू ऑल आर डूइंग। hats off to Lovely, you know, for initiating or for doing this, and across up to it's like a chain reaction. But my question was around ये जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अब चल रही है और ये जो सुप्रीम कोर्ट की अब यू नो अंदर केस है, as someone who is close to the family, as someone who's close to has been close to Sushant, or someone who's close to the whole frenzy that's happening around this, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि the real culprits will come out? मुझे पूरा फेथ है, और मुझे पूरा फेथ सिर्फ सीबीआई पे या हमारी गवर्नमेंट पे या हमारे प्राइम मिनिस्टर पे या हमारे सिस्टम पे ही नहीं है, बल्कि अगर आप देखें तो जिस सुपर पावर ने हम सबको यूनाइट किया है, वो सुपर पावर चाहती है कि जस्टिस हो, वरना ये केस बहुत 9 जुलाई के पहले दब जाता, और एक यू नो बहुत सैड चैप्टर होके फिल्म इंडस्ट्री में याद किया जाता।
लेकिन एक सुपर पावर है, और सुशांत की बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है जो हम सबको स्ट्रेंथ दे रही है, और हमें इस चीज़ में बिलीव करना चाहिए कि वो चाहते हैं उन्हें जस्टिस मिले, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। Absolutely, absolutely. And one last question, Joe. Obviously, I'm picking up some questions जो लोग भी पूछ रहे हैं. Were you or do you know anything about it? या आपकी फैमिली से बात हो? बहुत कुछ मीडिया में ये भी आ रहा है कि सुशांत का कोई this startup idea the COVID-19 के ऊपर या एक AI और मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ उन्होंने एक रजिस्टर किया था. उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? Could that also be an angle that really caused his death? You never know, because now when Pethani has accepted it in front of CBI that there were people who came on the 9th of June who came and deleted a lot of data, like 6 hard drives, means a lot of data in Right. front of Sushant. So, which I hope can be retrieved and can be Okay. signed. Okay. Sorry, we lost your audio for a bit. या सो डेफिनेटली उसमें उसमें पता चलेगा जब सीबीआई रिट्रीव कर लेंगी कि वो क्या डेटा था जो लोगों ने आकर जबरदस्ती डिलीट करवाया है। और सिद्धार्थ पिठानी के अनुसार वो रिया ने डिलीट करवाया था, रिया ने भेजे थे, तो पता ही चल जाएगा सब कुछ कि दूध का दूध और पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा, आई एम श्योर। Absolutely. Absolutely. And lovely. Anything you wanna? So I just want to like thank स्मिता जी, क्योंकि इस टाइम पे जब सब बॉलीवुड चुप हैं, सब अपना अपना कनेक्शन बनाने में लगे हुए हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू कम आउट एंड स्पीक, सो मच रिस्पेक्ट टू यू। और हम लोग सब मीन वी आर लुकिंग एट यू, वी आर फॉलोइंग यू ऑल्सो। आपने आप जो कैंपेन वगैरह कुछ भी चलाती हैं तो बताइए, एंड आई वुड आस्क ऑल द पीपल ऑल्सो टू डू एवरीथिंग, बिकॉज ऑल ऑफ अस आर फीलिंग इनसाइड, we have to show how we are feeling. Yep. जी जी, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस ग्रेट वॉर ऑफ जस्टिस। एंड आप लोगों का सपोर्ट अगर ग्लोबली रहेगा तो ये वॉर हम बहुत जल्दी जीतेंगे, एंड आई एम श्योर वी विल गेट टू द कल्प्रिट्स। Absolutely. And once again, a special thank you, Smita, for taking this time थैंक out. I know आप इतना यू। busy हैं. आपके फोन ने भी बता दिया कि आप कितना busy हैं. And I'm holding it in my one hand because I can only charge it like this. So Exactly. No, so thank you sorry so for much. this. Really, Thank really, you. really, it Thank was you a so pleasure much, and talking to hats you. off to you guys. Keep doing the good work you're doing, and we all are watching it. And lovely, Yes. thank you so much for the Thank campaign, you. Yeah. and please continue the good work and keep sharing it. Thank you. Thank you. All right. Sure. Thank you so You're much welcome. again. Take care. We'll talk soon. Thank you so much. All right. All right, guys. Thank you so much. And we'll talk soon. We will have another session very soon with, of course, with Lovely as well. And thank you, Lovely, for the connect and doing what you're doing. Let's keep the fight on and let's get justice for Sushant Singh. Thank you, everyone. Good night. Take care. Bye bye.